Hello friends, welcome to Sri Ram Science. Today in this series Ethics in News, we are going to discuss a one news which flashed in the media with a multiple perspective that is related to polyandry in Himachal Pradesh. Now, what is mean by polyandry? As we know polygamy means a husband having multiple wives. Same way, polyandry means a wife having multiple husband, and we found a reference to the practice of polyandry in Mahabharata, in which Pandavas, five brothers, married to a single woman, Draupadi. Now, this practice is not a part of today's majoritarian view. In India's most of the, yeah, we can say in global perspective that monogamy is accepted as morally justified and ethically right. Monogamy means a man having only one wife, or a woman, a wife having only one husband. It is globally accepted as a moral. But now the practices like polyandry, which are currently practiced in certain tribal communities, should be judged based on this majoritarian view, or should we try to understand the cultural context, ecological context and importance, or the situation which lead to this kind of practices, and should we respect these local customs, or should we create unfortunately or unwanted controversies? Now we are going to discuss that topic in detail. Friends, if you are preparing for mains examination, UPSC mains examination, and you have certain doubts about how should I approach answer writing, or if you have any kind of confusion, then you can take a benefit of Sri Ram's IAS one-on-one free mentorship. You can click below the link and fill your information so we can arrange a one-on-one free mentorship session for you. Now let's discuss this topic. In this topic, what happened is that two Haiti brothers, Haiti is a name of tribe which lived in Himachal Pradesh, a two brother married to a single woman named Sunita Chauhan. Okay, this in a public ceremony in Himachal Pradesh. Now, how media projected this news? Media projected this news as a practice of polyandry and try to stigmatize it or stereotype it or try to create a sensational story out of it. They didn't pay any attention to understand the cultural context, importance, and why this practice is followed in today's world in certain tribal communities. Now we are going to discuss that, and certain news or certain authors have criticized the role of media, and also they criticize this practice of polyandry. Now we are going to understand its significance. Its significance is it's a traditional form of fraternal polyandry where two brothers married to a single woman. Now, what is Jodidara? The practice which we have discussed right now, polyandry, is a tribal marital custom. Tribal marital custom where multiple brother marry single woman. Locally is known as Jodidara, and it has origin in Draupadi Patha, Mahabharata, as we have discussed. It also has many names like Ujla Prakash or Jodidaran, where wife alternate between brothers on mutually agreed schedule, and all the brothers, all her husband do parenting, property and household responsibilities in a shared manner. Now the eldest brother is often regarded as legal father of all the children, same as in Mahabharata. Now what is the purpose behind this practice? So India is a culturally plural country, and we have different culture, and different culture have different value sets, and we must respect those value set. And to understand those value set, we must understand the context. Now here we are discussing the context. Here context is economic reason. First one is, most of the time this practice of polyandry is practiced in hilly region where basic subsistence activity is agriculture, and agriculture land is very scarce, and often to prevent a fragmentation of ancestral land, they generally follow this practice. So polyandry के पीछे एक इकोनॉमिक रीजन भी है, वो है रिसोर्स कंजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और एंसेस्ट्रल लैंड, एज इस रीजन में लोगों को ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, तो अगर लैंड फ्रैगमेंटेशन होता है तो वो
फैमिली के लिए एक इकोनॉमिक लॉस क्रिएट कर सकता है। उसे अवॉइड करने के लिए, उस इकोनॉमिक लॉस को लिमिटेड रखने के लिए भी इस प्रैक्टिस को हिली रीजन्स में ट्राइबल कम्युनिटीज प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड, इसका सोशल पर्पस भी है। नाउ व्हाट इज सोशल पर्पस? सोशल पर्पस, जॉइंट फैमिली यूनिटी। अभी हम लोग देखते हैं कि लोग न्यूक्लियस फैमिली के पीछे जा रहे हैं, जहाँ पे एक स्मॉल फैमिली होती है, पर टोटल इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन अगर देखें जो कंप्लीटली बेस्ड है जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर पे। सो पॉलीएंड्री प्रैक्टिस के थ्रू एक जॉइंट फैमिली कल्चर जिसमें स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड और हाउस होल्ड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। अब इस प्रैक्टिस में इथिकल पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखें ट्राइबल लाइफ के, तो ट्राइबल लाइफ के इथिकल जो पर्सपेक्टिव है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव पेरेंटिंग, कि पेरेंट जो है वो मल्टीपल होते हैं और सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, कलेक्टिवली पेरेंटिंग करते हैं। उसके साथ ही जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, सारी की सारी शेयर की जाती है। उसके साथ ही लैंड की सस्टेनेबिलिटी और लीनिएज को भी मेंटेन किया जाता है, इसीलिए इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो इस प्रैक्टिस को हम लोग डायरेक्टली इमोरल या अनइथिकल नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक भी आएगा, सोशल इश्यूज भी आएंगे और इथिकल पर्सपेक्टिव भी आएगा। नाउ फ्रेंड्स, अब इसको इंडियन इथिकल पर्सपेक्टिव के साथ अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो इंडियन कल्चर में धर्मा जिसके बारे में भगवत गीता में भी बात की गई है, या जनरली जो भी धर्म आता है, राज धर्म हो या एक हाउस होल्ड धर्म हो, तो धर्म हमेशा कॉन्टेक्चुअल रहा है। कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से धर्म जो है वो वैरी हुआ है, और इंडिया जहाँ पे प्लूरलिज्म है, जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ पर धर्म भी जो है यानी वैल्यू सिस्टम जो है, इथिकल अनइथिकल मॉरल इमोरल जो है, ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वैरी होगी। तो यहाँ हमें उस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। हम लोग मेजॉरिटेरियन व्यू से हमारी वैल्यू सिस्टम को ही सुपेरियर और पॉलीएंड्री जैसे प्रैक्टिसेस को इन्फीरियर नहीं मान सकते। उसके लिए हमें इनके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा और यूनिक कॉन्टेक्स्ट का रिस्पेक्ट भी हमें करना होगा। जैसे महात्मा गांधी ने जो कहा था, जिन्हें हम गांधीयन इथिक्स भी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि रिस्पेक्ट फॉर रूलर ट्रेडिशन एंड लोकल विजडम। रूलर ट्रेडिशन है, ट्राइबल ट्रेडिशन है, लोकल विजडम है, ये विजडम ही है जो इतने सालों से ये प्रैक्टिस को कैरी ऑन किया जा रहा है। ये विजडम ही था जिसने इकोनॉमिक रिसोर्स के कंजर्वेशन और फैमिली यूनिटी, जॉइंट फैमिली यूनिटी, स्ट्रॉन्ग ब्रदरली रिलेशन, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रैक्टिस को सोशली एक्सेप्ट भी किया था। नाउ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, तो आर्टिकल 29 के हिसाब से राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। नाउ हियर कल्चर, तो कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमें हर कल्चर की वैल्यू सिस्टम को, कल्चरल प्रैक्टिसेस की रिस्पेक्ट करनी होगी और उसे कंजर्व करने का राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ग्रांट करता है। सो अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड है, उन्हें राइट है कि वो अपने कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो करें। और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम लोग इन्हें जज ना करें। तो इसीलिए गांधीयन पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी अगर बात करें, अ ट्राइबल सिस्टम मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट जज्ड। ट्राइबल सिस्टम को समझना है, ना कि उसे जज करना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल्ड है उसके हिसाब से इस ट्राइब को, हट्टिस ट्राइब को रिकॉग्नाइज भी किया गया है एज अ ट्राइबल कम्युनिटी। तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से जस्टिफाई कर सकते हैं, इंडियन ट्रेडिशन, धर्म और गांधीयन इथिक्स को अप्लाई करके भी जस्टिफाई कर सकते हैं। अब अगर लीगल स्टेटस की बात करें तो दोस्तों, पॉलीएंड्री प्रैक्टिस सेम वे पॉलीगामी जो है वो स्ट्रिक्टली इंडिया में प्रोहिबिटेड है, चाहे वो फिर हिंदू मैरिज एक्ट हो या स्पेशल मैरिज एक्ट हो, दोनों एक्ट में पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस को प्रोहिबिटेड किया है। पर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल में और जो और बहुत सारे आर्टिकल है जिनसे हम लोग इस एक्सेप्शन पर्टिकुलरली फॉर ट्राइबल एक्सेप्ट करते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हिमाचल हाई कोर्ट ने भी इस प्रैक्टिस को अपहेल्ड किया है। सो दोस्तों, अब बस ये जो प्रैक्टिस जो है, जोड़ीदारा प्रैक्टिस या
पॉलीएंड्री प्रैक्टिस, इसमें हाई कोर्ट ने जो कंसर्न रखा था वो इंपॉर्टेंट है कि ये प्रैक्टिस म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह के कोई भी कोरिजन को या कल्चरल सैंक्शंस को यूज नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू होना चाहिए। अब इस प्रैक्टिस को देखने का और एक पर्सपेक्टिव और एक इथिकल पर्सपेक्टिव, वो है जेंडर इथिक्स। जेंडर इथिक्स और वुमन एजेंसी। अब जेंडर इथिक्स और वुमन एजेंसी की अगर बात करें तो जनरली जो ट्राइबल वुमेन्स है उन्हें ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं, ज़्यादा सोशल अथॉरिटी होती है एज कंपेयर टू कास्ट बेस्ड सोसाइटी। मीन्स इंडिया में जो मेजॉरिटरी जो है या जो मेन स्ट्रीम जो है, यहाँ पे औरतों के कंपैरिजन में ट्राइबल वुमन को डिसीजन मेकिंग हो या सोशल अथॉरिटी हो ज़्यादा होती है। और उसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में ब्राइड्स कंसेंट कि ये जो मैरिज होते हैं पॉलीएंड्री वाले मैरिजेस, इसमें वुमन को राइट है कि वो अपने म्यूचुअल पार्टनर्स को एक्सेप्ट करे, चूज करे, और ये प्रैक्टिस म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर ही होती है। और साथ ही इससे वुमन को भी एक अथॉरिटी मिल जाती है, एक इम्पोर्टेंट राइट मिल जाता है जिसमें वो अपने पार्टनर को चूज कर सकती है। हाँ, अब ये बात अलग है कि इसमें मिस इंटरप्रिटेशन रिस्क है। मिस इंटरप्रिटेशन रिस्क किसके? तो जो मेन स्ट्रीम है, जो मेजॉरिटेरियन व्यूज़ है, या जो अर्बन बेस्ड है, या जो कास्ट हिंदूज़ है, उनके हिसाब से ये प्रैक्टिस कंप्लीटली इमोरल हो सकती है। पर उसको जेंडर पर्सपेक्टिव या वुमन एजेंसी पर्सपेक्टिव देखे तो ये एक एम्पावरिंग भी हो सकती है। ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। अब इसी के बारे में अगर बात करें तो मीडिया एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया ने सिंपली इस न्यूज़ को चलाया था ताकि सेंसेशन क्रिएट हो, न्यूज़ आए, पर ये क्या उन्होंने इथिकल कोड को फॉलो किया था? क्या मीडिया जर्नलिज्म की जो इथिकल डिमांड्स है, क्या उन्होंने उसको फॉलो किया था? इस मामले में एक थ्योरी आती है, थ्योरी बोगर्ट्स थ्योरी ऑफ न्यूज़। बोगर्ट थ्योरी ऑफ न्यूज़ में बोगर्ट ने कहा था कि इफ़ अ डॉग बाइट अ मैन, कुत्ते ने अगर आदमी को काटा, तो ये न्यूज़ जो है कोई मीडिया हाउस नहीं चलाएगा, क्योंकि इसमें ना कोई सेंसेशन है, ना कोई इस न्यूज़ को पढ़ना चाहेगा। पर अगर इंसान ने कुत्ते को काटा, इफ मैन बाइट्स अ डॉग, ये अनयूजुअल है, ये सेंसेशनल है, और ये स्टेरियोटाइप्स जो है उसको रीइंफोर्स भी करती है, तो मीडिया इसे बहुत चलाएगी। तो मीडिया का जो इथिकल पर्सपेक्टिव वो ये है कि उन्होंने कॉन्टेक्चुअल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। न्यूज़ जो है उसे कॉन्टेक्स्ट के साथ बताना चाहिए, साथ ही कल्चरल सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना चाहिए, और मेक श्योर करना चाहिए कि इसे नॉन जजमेंटल वे में प्रोजेक्ट किया जाए या प्रेजेंट किया जाए। जजमेंटल नहीं होना है। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों जो इथिकल जर्नलिज्म है उसके डिमांड्स की, तो ये भी पर्सपेक्टिव इस न्यूज़ से हम सीख सकते हैं। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं, या सिविल सर्वेंट के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। तो सिविल सर्वेंट के हिसाब से अगर बात करें या यूपीएससी के हिसाब से बात करें, तो पहली वैल्यू जो आती है वो है कल्चरल एम्पैथी। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, प्लूरलिज्म है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, और हर कल्चर की वैल्यू सिस्टम अलग अलग होती है, उनके इथिक्स और मॉरल अलग अलग हो सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में कल्चरल एम्पैथी ज़रूरत है। साथ ही नॉन जजमेंटल अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट पास नहीं करना है, पहले कल्चरल और कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप उसे समझ सकते हो, बाद में आप उसको जज कर सकते हो, पर हमेशा एटीट्यूड नॉन जजमेंटल। उसके साथ ही जो इंडिजीनियस वैल्यू सिस्टम है, इंडिजीनियस वैल्यू सिस्टम और डिफरेंट वैल्यू सिस्टम, हमारी वैल्यू सिस्टम से हटके अगर कोई भी वैल्यू सिस्टम्स आती है तो उसे हमने जज तो नहीं करना है, उसे रिकॉग्नाइज करना है कि सर्टन ग्रुप्स और सर्टन कल्चर में हैव अ डिफरेंट वैल्यू सिस्टम और दे हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इथिक, व्हाट इज इथिक्स एंड व्हाट इज मॉरल। सेम वे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ही अप्लाई करना है, ना कि मेजॉरिटेरियन नॉर्म, मेन स्ट्रीम या मेजॉरिटेरियन व्यू को अप्लाई ना करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कल्चरल प्लूरलिज्म को और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की जो वैल्यू सिस्टम्स है उनको रिकॉग्नाइज किया है और उन्हें सैंक्शंस भी दिया है, प्रोटेक्शन भी दिया है। अब सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो यहाँ पे ट्राइबल ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करना है। 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, जिसमें हम लोगों ने ट्राइबल कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस को प्रोटेक्शन दिया है, ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्शन दिया है। तो एज अ सिविल सर्वेंट ट्राइबल ऑटोनॉमी और उनके जो डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस है उनका रिस्पेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पे लीगल और कल्चरल बैलेंस को मेंटेन करना है।
लीगल और कल्चरल। लीगली चीज़ इलीगल हो सकती है, बट अगर वो कल्चरली सही है तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन डिफरेंट वैल्यू सेट, बिटवीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लीगल एंड कल्चरल वैल्यूज, उसे भी इन्हें प्रिजर्व करना है। साथ ही अवॉइड होमोजिनाइजेशन ऑफ पॉलिसी। इंडिया में वन साइज फिट सॉल्यूशन फॉर ऑल पॉसिबल नहीं है, तो हमें होमोजिनाइजेशन अवॉइड करना है। मेजोरिटेरियन व्यूज़ को सब पे लादने की जो आदत है उसे हमें अवॉइड करना है, हमें होमोजिनाइजेशन को अवॉइड करना है, और हमारी पॉलिसीज़ भी हेट्रोजीनस होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए। इसे कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें ये पॉलीएंड्री वाली न्यूज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव और कल्चर में समझने की कोशिश की। इसका कंक्लूजन है, इट इज़ नॉट जस्ट पॉलीएंड्री, इट इज़ अ लिव ट्रेडिशन ऑफ डिग्निटी, यूनिटी और साथ ही इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस भी है, डिग्निटी भी है, यूनिटी भी है। तो इसे जज नहीं करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को समझना है और कल्चरल वैल्यूज़ को, प्लूरलिटी को प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट भी देना है। देन हमेशा हमें लीगल पर्सपेक्टिव से देखने की या मेजोरिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत नहीं है, जजमेंटल नहीं होना है। हमें कल्चरल इथिक्स का भी रिस्पेक्ट करना है, उन्हें भी कंसिडरेशन में लेना है और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इंडिया में इथिकल प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे मल्टीपल ट्रेडिशन, मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल वैल्यू सिस्टम एग्जिस्ट करती है, को एग्जिस्ट करती है, वो भी टॉलरेंस के साथ। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने एक सिंपल न्यूज़ जो थी पॉलीएंड्री की, उसे हमने डिफरेंट इथिकल पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया। इसे आप एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, और ये हमारे लिए वैल्यू एडिशन भी है। जैसे इंडिया में पैट्रियार्की है, वैसे ही मैट्रियार्की भी है, तो वैसे ही पॉलीएंड्री और पॉलीगामी ये भी है, तो इन्हें भी कंसिडरेशन में रखना है। आई होप कि ये सेशन आपको यूज़फुल लगा होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में ऐसे ही एक करंट न्यूज़ के साथ आएंगे, जिसमें डिफरेंट इथिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे, ताकि आप एग्जाम में करेक्ट आंसर लिख सको। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।